اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو آن لائن کلاسز آف المنیر ہائی اسکول ای لرننگ سسٹم. ناؤ وی ریڈ our اردو سبجیکٹ کلاس 6. آج ہمارا یونٹ نمبر 12 زراعت، یہ ہم آج کمپلیٹ کریں گے. اس کی ریڈنگ کریں گے اینڈ دین ایکسرسائز بھی آج کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. زراعت جو ہے اس کو بیٹا کہتے ہیں کھیتی باڑی کرنے کو کہتے ہیں زراعت. ٹھیک ہے، پاکستان ایک زرعی ملک ہے. پاکستان کی معیشت میں زراعت کو امتیازی حیثیت حاصل ہے. اسٹوڈنٹس، زراعت جو ہے وہ ہمارے ملک میں پاکستان میں اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے، یعنی کہ اس کی اپنی پیداوار ہے. یہاں پر بہت ساری اجناس ایسی ہیں کہ جن کی پیداوار ہوتی ہے اور ان سے جو ہے ان کو دوسرے ممالک کو دے کر بیچ کر تو ہم اپنے پیسہ کماتے ہیں اور اس کے بعد مختلف ضروریات جو ہے وہ پوری کی جاتی ہیں. پاکستان کی قریباً 75% یعنی 75% آبادی جو ہے وہ شعبہ زراعت سے منسلک ہے. اب کیا کہا گیا ہے اس میں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے. ٹھیک ہے، اور معیشت کے اعتبار سے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس کی جو 75% آبادی ہے وہ شعبہ زراعت سے منسلک ہے. پاکستان میں ملکی صنعتوں کے لیے خام مال مثلاً کپاس، تیل کے بیج، گنا، تمباکو وغیرہ زراعت سے حاصل ہوتا ہے. پاکستان میں کیا ہے، اب جو ملکی صنعتیں ہیں یعنی ہمارے جو ملک کی جو پیداوار ہے اس کے لیے خام مال یعنی کہ جو کپاس ہے اور تیل کے بیج ہیں یا گنا ہے یا تمباکو وغیرہ ہے وہ زراعت سے ہی حاصل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ کپاس کے فصلیں پوری اگتی ہیں، پھر گنے کی فصلیں ہوتی ہیں، تمباکو کی ہوتی ہیں. اب پاکستان کا کل زرعی رقبہ جو ہے پاکستان کا کل زرعی رقبہ یعنی کہ وہ رقبہ جس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ فصلیں وغیرہ اگاتا ہے، زرعی ملک کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ زرعی ملک ہے، تو وہ کتنا ہے 70,07,374. ٹھیک ہے، یعنی کہ 70,07,374 مربع ملین یعنی کہ 198 ملین ایکڑ ہے، جس میں سے پاکستان کی زرعی زمین کے قریباً 41.4 ملین ایریا میں کاشت ہوتی ہے. جس میں سے پاکستان کی جو زرعی زمین ہے اس کے قریباً کتنے حصے میں ہوتی ہے، 41.4 حصے میں کاشت ہوتی ہے. یعنی پاکستان کے صرف 20.3% رقبے پر زراعت ہوتی ہے. اب یہ کل زرعی رقبہ جو ہے پاکستان کا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا ہے. ٹھیک ہے، 198 ملین ایکڑ ہے، لیکن اس کے صرف 41.4 ملین ایریے میں جو ہے کاشت ہوتی ہے. یعنی کہ پاکستان جو ہے اگر اس کو کل ٹوٹل دیکھا جائے تو 20.3% رقبے پر صرف کاشت کرتا ہے پاکستان. قیام پاکستان 1947 سے 1948 کے وقت یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے فیصد حصے پر جو ہے کتنے ایکڑ حصے پر جو ہے کاشتکاری کی جاتی تھی. یعنی کہ یہ کیا ہے 24.1 کتنی 24.1 یعنی 24.1 ملین ایکڑ جو ہے زمین کا حصہ اس پر کاشتکاری کی جاتی تھی. تقریباً کتنا بنتا ہے 12%. پاکستان میں زیر کاشت رقبے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب بیٹا اس کو پورے کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے اور زراعت کی وجہ سے اس کو خاصی اہمیت حاصل ہے. 75% آبادی جو ہے وہ اس زراعت کے پیشے سے منسلک ہے اور یہاں پر جو خام مال ہے ملکی صنعتوں کے لیے وہ بھی ہمیں اسی سے حاصل ہوتا ہے، زراعت سے. اس کا کل رقبہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ 198 ملین ایکڑ ہے یعنی کہ 198، جس میں سے 41.4 ملین ایریا جو ہے صرف اس پر کاشت ہوتی ہے یعنی 20.3% رقبے پر. اب قیام پاکستان کے وقت انہوں نے کیا بتایا ہمیں کہ 24.1 یعنی 24.1 ملین ایکڑ زمین پر کاشتکاری ہوتی تھی، جس میں کہ اب اضافہ کیا جا رہا ہے.
अब इसी पेज पे यानी पेज नंबर 87 की सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं। पाकिस्तान में मिट्टी और आबो हवा के इख्तलाफ की वजह से मुख्तलिफ अक़साम की फसलें पैदा होती हैं। यानी मुख्तलिफ अक़साम की फसलें किस वजह से पैदा होती हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है वो और जो यहाँ का आबो हवा है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर यानी ये अल्लाह की ख़ास ब्लेसिंग है, रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में 4 मौसम अता किए हैं और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सी फसलें जो हैं उनकी पैदावार होती है। पाकिस्तान में अनाजों में गंदम, चावल, मकई, बाजरा, जौ और दालें अहम फसलें हैं। अब इन्होंने जो अहम फसलें हैं उनके नाम बता दिए हैं कि जो जिस तरह से गंदम है, मतलब आटा हम खाते हैं गंदम पिसवा के, फिर चावल भी खाए जाते हैं, मकई भी यूज़ होती है, इसी तरह से बाजरा, जौ और दालें, ये सब हमारे खाने पीने के लिए अनाज है। जबकि नकद आवर फसलों में कपास, मतलब अब दूसरी जो है ये दूसरी फसलें ऐसी फसलें हैं कि जिनको हम दूसरे ममालिक को देकर भी फ़ायदा उठाते हैं। गन्ना, तेल के बीज और तंबाकू अहम फसलें तस्लीम किया जाता है, ठीक है, इनको अहम फसलें तस्लीम किया जाता है। किसके हिसाब से? नकद आवर जो फसलें होती हैं। सबसे पहली है फसल रबी। फसल रबी मौसम सरमा की फसल है, यानी कि मौसम सरमा में सर्दी में ये होती है। फसल रबी नवंबर दिसंबर में काश्त की जाती है और मार्च अप्रैल में ये फसल रबी कटाई के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। काश्त कब की जाती है? नवंबर दिसंबर में, और इसकी कटाई कब होती है? मार्च और अप्रैल में। गेहूँ, जौ, चना और सरसों इस फसल की ख़ास पैदावार हैं। और फसल रबी में कौन सी ख़ास फसलें हैं? जौ की फसल है, चने की फसल है, सरसों की और गेहूँ की। सेकंड है फसल जायद, यानी कि जो और फसलें हैं उनमें कौन सी फसलें आती हैं? ये फसल मौसम बहार के आगाज़ में काश्त की जाती है और मौसम गर्मा में ये फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अब कब इसका बहार के आगाज़ में यानी मौसम बहार के शुरू में इसकी काश्त की जाती है और ये फसल कब कटाई के लिए तैयार होती है? मौसम गर्मा में। इस फसल में सब्जियां, मतलब तकरीबन मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्जियां हैं वो खरबूजा, तरबूज और मवेशियों के लिए चारा काश्त किया जाता है, ठीक है। अब है थर्ड वाला फसल खरीफ। ये फसल मौसम बरसात की फसल है। ये फसल जुलाई अगस्त में काश्त की जाती है और अक्टूबर और नवंबर में ये फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि तैयार हो जाती है कि अब उसको काट कर इस्तेमाल किया जा सकता है। कपास, जवार, बाजरा, मकई, गन्ना, तिल और चावल इस फसल की ख़ास पैदावार हैं। यानी कि ये याद रखना है आपने कि फसल रबी में कौन कौन से हमारे फसलें उगती हैं और फसल खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, पेज नंबर 88 की ही सेकंड पैराग्राफ लास्ट में। ज़राअत का शोबा हमारे मुल्क के निस्फ से ज़ायद अफराद को रोज़गार फराहम करता है। निस्फ क्या होता है? आधे, यानी कि हमारे मुल्क के जो आधे लोग हैं, तकरीबन आधे लोग इसी मतलब ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हैं और यही जो शोबा है इनको फराहम करता है क्या? रोज़गार। हमारे मुल्क की बेशतर आबादी की खुराक व दीगर ज़रूरियात का इन्हिसार ज़राअत की कारकर्दगी पर है। यानी कि हमारे मुल्क की बेशतर आबादी यानी ज़्यादा जो आबादी है उसकी खुराक और जो दीगर ज़रूरियात हैं वो सब कहाँ से? ज़राअत की वजह से ही उनको हासिल होती हैं। पाकिस्तान में ज़राअत के पेशे से मुंसलिक अफराद की फ़ीकस आमदनी दूसरे पेशों के निस्बत कम है। अब जो ज़राअत से रिलेटेड लोग हैं, जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं, उनकी जो आमदनी है वो बाकी दूसरे शोबों में काम करने वाले अफराद की आमदनी से काफ़ी कम है। ताहम मतलब अगरचा हमारे मुल्क के ज़्यादातर लोग इसी पेशे से वाबस्ता हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि हमारे मुल्क के ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी पेशे से बिलोंग करते हैं, इसी पेशे से वाबस्ता हैं। इस पेशे से मुल्क की बेशतर आबादी की वाबस्तगी के मुदज्जा ज़ैल असबाब हैं। अब हमें जो है वो बताया जा रहा है कि क्यों जो हमारे मुल्क में लोग हैं वो ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं। अब देखते हैं कदीम तरीन पेशा। बड़े सगीर में बेटा यह है पेज नंबर 89, इसका फर्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसका कदीम तरीन पेशा। बड़े सगीर में काश्तकारी के पेशे से लोग हज़ारों सालों से वाबस्ता हैं
मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के आसार इस बात के गवाह हैं कि इस खित्ते के लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल ज़राअत के पेशे से मुंसलिक थे। अब इसमें क्या कहा गया है कि हज़ारों लोग जो हैं वो इस पेशे से वाबस्ता हैं, काश्तकारी के पेशे से। अब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के जो आसार हैं वो इस बात के गवाह हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल भी यहाँ पर लोग जो है वो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक थे। अब सेकंड देखते हैं क्या है इसमें हेडिंग, खुराक की कमी। ज़राअत खुराक की फराहमी का अहम तरीन ज़रिया है, यानी ज़राअत से लोगों को खुराक जो है वो मिलती है, खुराक फराहम होती है। हमारी खुराक का ज़्यादातर हिस्सा ज़राअत से ही हासिल होता है। अब जो हमारी खुराक है स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम गंदम जो है मतलब उसको पिसवा कर आटा बनाते हैं, रोटी जो खाते हैं वो गंदम की है, तो वो कहाँ से हमें हासिल होती है, मतलब ज़राअत से, फसलों से। इसी तरह से चावल है, फिर मकई है, गेहूँ है, बाजरा है, ये सब ऐसी हैं, और दालें वगैरह। हमारा यानी कि खुराक का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो हम ज़राअत से ही हासिल करते हैं। हमारे मुल्क की आबादी में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा बढ़ती हुई आबादी की खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रई पेशे को तरक्की देना नागुज़ीर हो गया है, यानी कि नामुमकिन एक तरह से होता जा रहा है। क्योंकि बात यह है कि हमारे मुल्क की जो पैदावार है वो उसी मिलियन एकड़ रकबे पर हो रही है, लेकिन हमारे मुल्क की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा पहले की निस्बत बढ़ गई है। अब ये जो आबादी बढ़ रही है तो लिहाजा इसको खुराक की भी ज़रूरत है, और इस आबादी की बढ़ती हुई ज़रूरियात को और खुराक की बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसमें तरक्की देना जो है नागुज़ीर हो गया है, यानी कि ज़रूरी हो गया है इसमें। ठीक है, नामुमकिन नहीं होता, ये होता है ज़रूरी हो गया है कि उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रई शोबे को तरक्की देना नागुज़ीर हो गया है, कि मतलब इसमें हमें तरक्की मिलेगी तो ही हम जो है आगे ज़राअत के पेशे से लोगों को जो है ज़्यादा उनको दे सकते हैं, उनकी ज़रूरियात को, खाने पीने की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, नागुज़ीर यानी ज़रूरी हो गया है। क़याम पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के क़याम के बाद हमारी ज़रई पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ है, हमारी जो ज़रई पैदावार है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया है। ताहम हमारे मुल्क की आबादी की शरह में 3.13% सालाना इजाफा हो रहा है, यानी तकरीबन 3.13% के हिसाब से जो है सालाना इजाफा हो रहा है, जो कि दुनिया में करीबन सबसे ज़्यादा है, यानी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा तसव्वुर किया जाता है। इसलिए हमें खुराक के वसाइल में भी मज़ीद इजाफा करने की ज़रूरत है ताकि हमारी खुराक की ज़रूरियात बआसानी पूरी हो सके। अब इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी जो खुराक के वसाइल हैं, मतलब किस तरह से हमें इन चीज़ों को बढ़ाना है, इनमें मज़ीद इजाफा कैसे करना है, उस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, ताकि जो हमारी आबादी बढ़ती जा रही है उसकी ज़रूरियात, खुराक की जो ज़रूरियात है उसकी वो पूरी की जा सके। नेक्स्ट देखते हैं हमवार मैदानी इलाके। अब स्टूडेंट्स इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की ज़राअत दरियाए सिंध और इसके मुआवन दरियाओं का मरहूने मिन्नत है, यानी पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो दरियाए सिंध और उसके साथ जो दरिया मिलते हैं उनकी वजह से ही, यानी कि उनकी मरहूने मिन्नत है कि अगर वो नहीं होंगे तो ज़राअत का जो हमारा एरिया है वो सैराब नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस खत्ते के मैदानी इलाके इन्हें दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से वजूद में आए हैं और इनका शुमार दुनिया के ज़रख़ेज़ तरीन मैदानों में होता है। ये मैदानी इलाके ज़राअत या काश्तकारी के लिए बहुत ही मौजू हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है कि जो दरियाए सिंध जो है वो उसके इर्द गिर्द के जो सारे दरिया हैं वो तमाम जो है ज़राअत के लिए बड़े अहम समझे जाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मैदानी इलाके हैं ना, वहाँ पर जब दरिया उनको सैराब करते हुए जाते हैं तो अपने साथ लाई हुई ज़रख़ेज़ तरीन मिट्टी जो है वो उन मैदानों में छोड़ते चले जाते हैं, और उस वजह से ये मैदान जो है ये ज़राअत और काश्तकारी के लिए बहुत ही मौजू होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स होता ये है कि हर जगह पर आप फसलें नहीं उगा सकते, कुछ मखसूस जगह होती हैं जहाँ पर ज़रख़ेज़ होती है मिट्टी, और जब ज़रख़ेज़ मिट्टी के अंदर फसलें उगाई जाएं तो ही वो फसलें जो हैं वो बढ़ती हैं, फैलती फूलती हैं।
साजगार आबो हवा। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 80 का साजगार आबो हवा। पाकिस्तान की आबो हवा काश्तकारी के लिए मुनासिब हालात फराहम करती है, जो कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आबो हवा के इख्तलाफात की बिना पर मुख्तलिफ इकसाम की फसलों की काश्त के लिए नहायत ही मौजू है। यानी अब क्या कहा गया है कि पाकिस्तान की जो आबो हवा है वो काश्तकारी के लिए बहुत मुनासिब है। क्यों मुनासिब है? क्योंकि हमारे मुल्क में जो आबो हवा का इख्तलाफ है, इख्तलाफ मीन्स सर्दी और गर्मी, बहार और ख़ज़ां। यानी हमारे मुल्क में सर्दी है तो बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो कि सर्दी में बो दी जाती हैं, यानी काश्तकारी की जाती है, और गर्मियों के आने तक वो पक चुकी होती हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि आबो हवा के इख्तलाफ, यानी कि जो सर्दी और गर्मी का जो आपस में इख्तलाफ है, अपोजिट मौसम जो है, इनकी वजह से मुख्तलिफ इकसाम की फसलों की काश्तकारी की जाती है, जो कि नहायत ही मौजू हैं काश्तकारी के लिए। ठीक है, अब है ख़ास तौर पर मैदानी इलाकों में जहाँ पर मौसम सरमा शदीद नहीं होता। अच्छा, साथ ही उन्होंने इलाकों की बात कर दी कि जो मैदानी इलाके हैं जहाँ पर मौसम जो है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होता और सर्द इलाकों की तरह इन इलाकों में बर्फ़बारी भी नहीं होती, इसलिए मैदानी इलाकों में मौसमों में मुख्तलिफ इकसाम की फसलें काश्त की जाती हैं। यानी फसलों को जो है, बहुत सारी फसलों को धूप की ज़रूरत होती है, बहुत सारी फसलों को धूप की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारी फसलें जो है वो मौसम सरमा में सही ग्रोथ होती है उनकी, किसी की मौसम गर्मा में होती है। इसीलिए कहा गया है कि मोस्टली जो हमारी यहाँ की पाकिस्तान में जो फसलें ज़्यादा हैं वो मौसम गर्मा की ही पैदावार है। अगर मौसम सरमा, जहाँ जिन इलाकों में मौसम सरमा में शिद्दत नहीं होती, उन इलाकों में मुख्तलिफ इकसाम की फसलें जो है वो काश्त की जाती हैं। अब पेज नंबर 90 का फर्स्ट जो है टॉपिक देखते हैं। क्या फर्स्ट हेडिंग, ज़रख़ेज़ ज़मीनें। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की ज़मीनें कुदरती अवामिल से बनी हुई हैं, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के अवामिल से अमल में आई हैं। देखते हैं कौन से अवामिल हैं, जिनमें दरिया, हवा और ग्लेशियर का अमल शामिल है। यानी जो हमारे जो मुख्तलिफ इलाके हैं हमारी ज़मीन के, वो इस किस्म के, यानी दरियाओं से, हवाओं से, ग्लेशियर्स वगैरह से, इनसे वजूद में आई हैं। ये सब ज़मीनें ज़रख़ेज़ी मवाद से वजूद में आई हैं। अब ये तमाम जो ज़मीनें हैं ये किस चीज़ से वजूद में आई हैं? पहले ही आपको बता दिया गया है कि जब दरिया अपने साथ ज़रख़ेज़ मिट्टी लेकर आते हैं और जिन एरिया से वो गुज़रते हैं वो मिट्टी वहाँ पर छोड़ते चले जाते हैं, और इस तरह से वो ज़मीन जो है वो मज़ीद ज़रख़ेज़ हो जाती है। आज भी बहुत से इलाकों में ये अवामिल इन ज़मीनों की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा कर रहे हैं। यानी जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जिन फसलों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, अगर उनके साथ में दरिया लगते हों तो इजीली उनकी पानी की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है और उनको मज़ीद ज़रख़ेज़ बनाया जा सकता है। दरियाए सिंध के बलाई और ज़ेरी मैदान के बेशतर इलाकों की मिट्टी नहायत ज़रख़ेज़ है, जहाँ हर किस्म की फसलें काश्त की जा रही हैं। अब इसी वजह से दरियाए सिंध जो है वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़राअत के शोबे में, कि उसकी जो बलाई और ज़री ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या है, हर किस्म की फसलें काश्त की जाती हैं। अब नेक्स्ट है रोज़गार की फराहमी। हमारे मुल्क में बेरोज़गारी का मसला पेचीदा सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, यानी कि संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना बेरोज़गारी का मसला। पाकिस्तान में हर साल बेरोज़गार अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस मसले के हल के लिए, अब ये जो मसला है यानी बेरोज़गारी का जो मसला है, उसके हल के लिए ज़रई शोबे को तरक्की देना नहायत अहम है। इस मसले के हल के लिए क्या कहा गया है कि जो हमारा ज़राअत का शोबा है उसको हमें बहुत ज़्यादा तरक्की देनी होगी। ज़रई शोबे की तरक्की से रोज़गार के बेहतर मौके पैदा किए जा सकते हैं। हमारे मुल्क में ज़रई शोबे में जदीद साइंसी तहकीक को फ़रोग़ देने की अशद ज़रूरत है। इससे न सिर्फ ज़राअत की तरक्की में मदद मिलेगी बल्कि बहुत से तलीम याफ्ता अफराद को रोज़गार भी फराहम होगा। ओके,
اب اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے یہاں پر بے روزگاری کا مسئلہ بہت زیادہ پیچیدگی اختیار کرتا جا رہا ہے، سنگین ہوتا جا رہا ہے، تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے جو زرعی شعبے ہیں اس کو بہت ترقی دینی چاہیے اور اس کے اندر جدید تحقیقات کرنی چاہیے، اور تاکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس شعبے کی طرف آئیں اور وہ اپنی تعلیم سے جو ہے اس شعبے کو اور زیادہ ترقی دے سکیں۔ اب نیکسٹ ہے آبپاشی کا نظام۔ پاکستان میں مجموعی بارشوں کی مقدار 20 انچ سالانہ سے کم ہے۔ اب کیا کہا گیا ہے کہ جو پاکستان میں بارشیں ہوتی ہیں ان کی کیا مقدار ہے؟ 20 انچ سے کم ہے، جو کہ زراعت کے لیے ناکافی ہے۔ دریاؤں سے نہریں وغیرہ نکال کر پانی کی کمی کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اب اس پانی کی کمی کو کس طرح سے پورا کیا جا رہا ہے؟ دریاؤں سے نہریں نکالی جا رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں دریاؤں کی ترتیب کچھ ایسی ہے کہ وہ تمام میدانی علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے جو پورے ملک کے دریا ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ سب سے زیادہ میدانی علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دریاؤں سے مزید نہریں نکال کر وسیع پیمانے میں بڑی آسانی سے کاشتکاری ہو سکتی ہے، اور جن علاقوں میں نہریں وغیرہ نکالنا ممکن نہیں وہاں پر ٹیوب ویل یا دیگر ذرائع سے پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یعنی آبپاشی کا نظام کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو بارشیں جو ہیں وہ صرف اور صرف 20 انچ سالانہ ہوتی ہیں، اور جو کہ زراعت کے لیے تو ناکافی ہے پانی۔ اس پانی کی کمی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ سمندر سے نہریں نکالی جا رہی ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے جو بہت سارے جو دریا ہیں، سمندر کے لیے دریاؤں سے نہریں نکالی جا رہی ہیں، اور موسٹلی ہمارے جو دریا ہیں سارے کس سائڈ پہ ہیں؟ میدانی علاقوں میں، اور یہی میدانی علاقوں میں اگر یہ جو دریا ہیں ان میں سے نہریں نکالی جائیں تو پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور پانی کی کمی پوری ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کیا ہوگا؟ یہاں پہ بڑی آسانی سے کاشتکاری جو ہے وہ ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، اب اسٹوڈنٹس نیکسٹ دیکھتے ہیں، ہماری ایکسرسائز ہے بیٹا چیپٹر نمبر 12 زراعت، یعنی کہ یونٹ نمبر 12 ہے زراعت۔ زراعت کا ہمارے پاس جو چیپٹر ہے اس کی ہم ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے، سبق کے متن کے مطابق سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ اس میں ہم سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں، زراعت کی اہمیت بیان کریں۔ زراعت کی اہمیت بیان کریں، اس کو ہم جواب دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں زراعت کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان کی قریباً 75% آبادی شعبہ زراعت سے منسلک ہے، یعنی کہ 75% آبادی جو ہے ان کا کون سا شعبہ ہے؟ زراعت کا شعبہ ہے۔ پاکستان میں ملکی صنعتوں کے لیے خام مال مثلاً کپاس، تیل کے بیج، گنا، تمباکو زراعت سے حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے صرف 20.3% یعنی کہ 20.3% رقبے پر زراعت ہوتی ہے۔ زراعت کا شعبہ ہمارے ملک کے نصف سے زیادہ افراد کو روزگار فراہم کرتا ہے، یعنی آدھے سے زیادہ افراد کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ زراعت سب سے قدیم پیشہ ہے۔ سوال نمبر 2، پاکستان کی اہم فصلوں کے بارے میں نوٹ لکھیں۔ اس میں ہم کرتے ہیں، پاکستان میں سال بھر میں 3 فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی ہے فصل ربی۔ فصل ربی موسم سرما کی فصل ہے۔ گیہوں، جو، چنا اور سرسوں اس کی خاص پیداوار ہیں۔ اس میں بیٹا کو لکھا گیا ہے، مسپرنٹ ہو گیا ہے، آپ نے لکھنا ہے اس کی خاص پیداوار ہیں۔ سیکنڈ ہے فصل زائد۔ یہ فصل موسم بہار کے آغاز میں کاشت کی جاتی ہے۔ اس فصل میں سبزیاں، خربوزہ اور مویشیوں کے لیے چارہ تیار کیا جاتا ہے۔ تھرڈ ہے فصل خریف۔ یہ موسم برسات کی فصل ہے۔ کپاس، جوار، باجرہ، مکئی، گنا، تل اور چاول اس فصل کی خاص پیداوار ہیں۔
सवाल नंबर 3 है, फसलें रबी कौन से मौसम में काश्त की जाती है? इसका जवाब देखिए, फसलें रबी मौसम सरमा की फसल है। ये फसल नवंबर दिसंबर में काश्त की जाती है। नेक्स्ट है, फसलें खरीफ की अहम फसलों के नाम लिखें। इसका आंसर देखते हैं, कपास, जवार, बाजरा, मकई, गन्ना, तिल और चावल इस फसल की खास पैदावार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में ज़री रकबे की पैदावार में इजाफा की वजूहात बयान करें। इसको हम देखते हैं वजूहात। सबसे पहला है हमवार मैदानी इलाके, सेकंड है साजगार आबो हवा, थर्ड है ज़रख़ेज़ ज़मीन, फोर्थ है रोजगार की फराहमी। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने सवाल नंबर 2 को। सबक के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। पाकिस्तान का कुल ज़रई रकबा मिलियन एकड़ है। कितना है? इसमें आपने देखना है 198 यानी कि 198। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर सेकंड है, पाकिस्तान की कुल आबादी ज़राअत से मुंसलिक है 75% यानी कि ऑप्शन नंबर 2। फिर है, पाकिस्तान के कुल रकबे पर काश्त होती है, यह है 20% यानी कि ऑप्शन नंबर 1 20%। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में साल भर में फसलें काश्त होती हैं 3, ये सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लास्ट है, पाकिस्तान में मजमूई बारिशों की मिकदार सालाना है 20 इंच से कम, यानी थर्ड ऑप्शन को आपने टिक करना है। अब है हमारा पेज नंबर 91 पे मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। सबसे पहला है, पाकिस्तान एक डैश मुल्क है। इसमें हम करेंगे ज़रई मुल्क है। सेकंड है, ज़राअत का शोबा हमारे मुल्क के डैश से ज़ायद अफराद को रोज़गार फराहम करता है। इसमें हम लिखेंगे निस्फ। थर्ड है, ज़राअत डैश की फराहमी का अहम तरीन ज़रिया है। इसमें हम लिखेंगे खुराक, यानी कि ज़राअत जो है वो खुराक की फराहमी का अहम तरीन ज़रिया है। फोर्थ है हमारा पेज नंबर 92 पे, फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक्स। पाकिस्तान में ज़राअत में डैश का इस्तेमाल महदूद है। इसमें हम करेंगे जदीद साइंसी तहकीक। और लास्ट है, पाकिस्तान की आबोहवा डैश से है मुतदिल। पाकिस्तान की आबोहवा डैश है, पाकिस्तान की आबोहवा मुतदिल है, यानी जो तब्दील होती रहती है, एक जैसा ना होना। अब है सवाल नंबर 4, गलत और दुरुस्त की निशानदही करें। इसमें सबसे पहले है, पाकिस्तान एक सनती मुल्क है, ये गलत है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान में साल भर में 3 इकसाम की फसलें काश्त होती हैं, ये दुरुस्त है। ज़राअत बरे सगीर का कदीम तरीन पेशा है, ये भी दुरुस्त है। पाकिस्तान में सालाना बारिशें 20 इंच से कम हैं, ये भी दुरुस्त है। लास्ट है, पाकिस्तान में ज़राअत को मामूली अहमियत हासिल है, ये रॉन्ग है। ठीक है, अब क्या है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। अब कॉलम अलिफ के फर्स्ट को देखते हैं। पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत, इसको हमने किसके साथ मिलाना है? को इम्तियाजी हैसियत हासिल है, को इम्तियाजी हैसियत हासिल है। सेकंड है, बरे सगीर में काश्तकारी के पेशे, इसको हम ज्वाइन करेंगे, से लोग हजारों सालों से वाबस्ता हैं, यानी कि बरे सगीर में काश्तकारी के पेशे से लोग हजारों सालों से वाबस्ता हैं। नेक्स्ट है, हमारे मुल्क की आबादी में, इसमें हम राइट करेंगे, तेजी से इजाफा हो रहा है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की आबोहवा काश्तकारी के लिए मुनासिब हालात फराहम करती है। और लास्ट है, पाकिस्तान में ज़रई मजदूरी सस्ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, पेज नंबर 94, दर्ज झैल ज़रबुल इमसाल का मतलब लिखें। इसमें सबसे पहले है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसका आपने मीनिंग लिखना है,
सब लोग यकसां नहीं होते, यानी एक जैसे नहीं होते। हातिम की कब्र पर लात मारना, इसका मतलब होता है बखील से इत्तफाकिया सखावत हो जाना। बखील यानी कंजूस इंसान जो होता है वो। फिर थर्ड है सवाल गंदुम जवाब चना, यानी सवाल कुछ जवाब कुछ। फिर फोर्थ है शैतान की घर वाली, यानी इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करने वाली औरत। लास्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर, इसको हम देखेंगे घर की उम्दा चीज की भी कदर नहीं होती। ठीक है, अब सवाल नंबर 7 है वाहिद जमा। इसमें सबसे पहला है फकीर, इसकी हम जमा लिखेंगे फुकरा। वजीर वज़रा, वारिस इसका होगा वुरसा। आलिम, आलिम की जमा होगी उल्मा। और कदीम, कदीम की जमा कदीम ही है। अब नेक्स्ट है 10 अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। इसके मुतरादिफ देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है ताकत। ताकत का मुतरादिफ होगा जोर, जोर या तवानाई। सेकंड है घोंसला, घोंसला कहते हैं परिंदों का घर या आशियाना। थर्ड है मोहब्बत, मोहब्बत को कहेंगे प्यार। फिर है माए, माए मीन्स के माँ की जमा माओ। कमर, कमर का मुतरादिफ होगा पुश्त। सवाल नंबर 9 है नामुकम्मल फिक्रात को मुकम्मल करें। सबसे पहला है फाख्ता को अमन का डैश कहते हैं, इसमें आप लिखोगे परवाना। फाख्ता को अमन का परवाना कहते हैं। नेक्स्ट है किसी अरबी को डैश कोई फजीलत नहीं, इसको हम देखेंगे किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं। नेक्स्ट है लाहौर डैश के किनारे आबाद है, इसमें हम राइट करेंगे लाहौर दरियाए रावी के किनारे आबाद है। फिर है नेक्स्ट मुसलमान आपस में डैश हैं, इसमें हम राइट करेंगे भाई भाई, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और नेक्स्ट है मेहनत में डैश है, यानी मेहनत में अजमत है। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का लास्ट था, लास्ट क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा कोई भी वर्क नहीं है। अब इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि ये बहुत नीट एंड क्लीन आपकी कॉपीज़ पे जो है राइट करना है आपने, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।